Morning. Today I'm going to explain the chapter Kaki, which is ICSE grade 9 chapter, Hindi chapter. So I will explain with English with the help like English and Hindi both. And I wrote the important meanings so you all can note it down in your textbook if you all feel like you all need to know them. And secondly, if you all want the question answers of this chapter, please feel free to type it down in the comment section. I will immediately send us upload a second video of that. So let's get started explaining. उस दिन बड़े सवेरे सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शान कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में भी कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। देयर सो मेनी की पॉइंट्स इन द फर्स्ट पैरा, यू शुड टेक नोट ऑफ दिस। फर्स्टली शामू इज द मेन कैरेक्टर। शामू एक छोटा लड़का है इधर और उसकी काकी इस कहानी में मर चुकी है। तो उसने बड़े सवेरे उठकर देखा कि क्या मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ। कोहराम मतलब नॉइसी, शोर शराबा, जब बहुत लोग आवाज़ करते हैं कि मतलब रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कोहराम मचा हुआ है। तो उसने ये देखा। तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि शामू ने जब उठकर सवेरे उठकर क्या देखा। तो आपको you have to explain the answer and write it, not just one line. Now what did he see? उसने क्या देखा, ये है उसकी आंसर, ये पूरी लाइन, ये पूरी वाक्य। उसकी माँ कौन है, यानी कि काकी। So now he is a child, he cannot understand that his mother is dead, but for him it is just his mother is lying on the floor, एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमिशान मतलब स्लीपिंग, सो रही है। तो उसे क्या लग रहा है कि उसकी माँ एक कंबल में सोई हुई है और घर के सब लोग उसे घेर कर मतलब सराउंडिंग, ओके, बैठे उसे करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। नाउ विलाप मतलब दिल से आंसू, दर्द। नाउ whenever anyone dies in your family, we all are sad, we all cry, it's not a pleasant sight to see. So he was seeing this. Now उस बच्चे को क्या समझ में आता है, उस बच्चे को क्या पता है, बेसिकली वो छोटा बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि मरना क्या होता है। वो उसे लग रहा था कि उसकी माँ सो रही है। लोग जब उमा को, अभी उमा कौन है, उमा शामू की माँ है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि शामू की माँ कौन थी। आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं हो तो उमा अंडरलाइन करना, उमा शामू की माँ है। सो आई रीड द सेकेंड पैरा नाउ। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। तो पहले तो शमशान यानी कि क्या, जहाँ पे हिंदुइज्म में क्या होता है, मरने के बाद वह लोग उस बॉडी को मतलब दे बर्न द बॉडी, दैट इज द ritual in Hinduism. So they were taking the body to the Shamshan to get it burned. Now Shamu is a small boy, for him it's his mother, so he was stopping them. He was like, what are you doing, where are you taking my mother and going, काकी को कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूँगा। So like as a child you always have that, why are you taking my mother here? And he, of course, I told you in the beginning that he doesn't know that his mother is dead. He thinks his mother is sleeping. So for him as a child, in his perspective, if we see, he's like, my mother is sleeping and you all are waking her up and taking her somewhere. So according to his perspective, I'm telling y'all. Okay, so those people, they were stopping him, but by mistakenly he left from a person's hand and fell on his mother's body. Okay, now let's read the third paragraph. If you all have any doubts, please note down in the comment section. I will answer it as soon as possible. So लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए. So with very difficulty all the people could remove him from her body. काकी के दाह संस्कार मतलब लास्ट रिचुअल्स में उसे नहीं जाने दिया. एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही. Now what is the thing, when you're a child, your parents do not allow you to go to anyone's
last eyes, like see the body burning. So when you become an adult, you're allowed to go, to see the body burning, because when you're a child you feel scared, or of course it's his mother and he doesn't know what has happened, so of course he would feel scared, so they did not allow him to go to see his mother's body getting burned. So एक दासी, दासी मतलब यहाँ की सेविका होता है, राम राम यानी कि पाठ करना, राम राम प्रार्थना करके उसे घर पर ही संभाले रहे। यद्यपि बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब लाइक बुद्धिमान गुरुजनों, लाइक पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ने उसे विश्वास दिलाया, लाइक okay, so like how in serials you'll have seen, and especially in Tarak Mehta, where for any marriage you have a guruji. So like that only बुद्धिमान गुरुजनों means people of high knowledge ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका. Now what? See, now they had to they had to tell him, let him know that your mother is gone nowhere, but she just gone to his mama ke house. Now when you're a small child, how can they tell that your mother is dead? Of course he cannot tolerate that sadness, he will cry, he might do something, right? He's a child. So these people, they told him, they gave him vishwas, means they gave him hope that no, your mother's gone nowhere, but she just gone to mama का house. But हमें ये पता है कि ये झूठ था, ये सिर्फ मतलब उसे शांत करने के लिए बोला गया. जब बच्चे तो झूठ बोलते ही है, परंतु असत्य, हमें पता है कि ये असत्य है, वो मामा के घर नहीं गया है बल्कि राम के घर गया है. असत्य के आवरण, आवरण यानी कि पर्दा. they tell, right, lies can never stay for long. The same way असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका. Finally the truth has to be revealed one or the other day. आस पास के अबोध, अबोध यानी कि अनजान, like people who innocent children, like जिनमें ज्ञान नहीं हो. Now when you're children you're all innocent, right? That's why they are saying अबोध, आस पास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया. So now when you're playing with your friends, sometimes they tell you the truth, यानी कि like what is the actual truth. So by mistake it came out from their mouth that your mother has not gone to your mama's house but gone to Ram's house. राम यानी कि भगवान के घर. यह बात उससे छिपा न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है. किसने किससे बोला? उन अबोध बच्चों ने शामू से कहा. काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शौक शांत न हो सका. Now he was crying very bitterly, because first of all those people told him lies, those gurujis told him lies, and now when he came to know the truth, he was crying, he couldn't stop his tears. Of course he's a child, what can he do? His rudan, matlab he was like in a shock. Finally after few days his tears stopped. क्या लिखा है इधर? उसका मतलब रोना तो शांत हो गया, परंतु शौक शांत न हो सका. He was in such a shock. He was like, what happened? Where's my mother gone, and why they told me lies? ऑफकोर्स बच्चा था. वर्षा के अनंतर एक तो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अनस्तल में वह शौक जाकर बस गया था. वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता. सो व्हाट इज इट said here? Now they have taken an example that when it rains, now it's especially rainy season, it rains, the rain gets dried from the flow, correct? The rain gets absorbed in the flow, it gets dried, but inside the mud there is still moisture. So the same way they have explained in the case of Shamu, that even in Shamu's case he stopped crying, but inside his heart, that that pain was still there. Where is my mother? He wanted his mother. Every child wants their especially their mother. So अगोचर यानी कि गायब होता है. सो एज ए टोल्ड, द वाटर टू गेट्स, पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता, दैट मॉइस्चनेस इज ऑलवेज, दैट मॉइस्चर इज ऑलवेज देयर. सेम थिंग, योर टीयर्स माइट स्टॉप बट योर पेन इज स्टिल देयर. ओके, सो दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट वे. शून्य मन से यानी कि खाली मन से. He should just see the sky, because his friends told Ram ke paas, and Ram is up, Ram is, for them, is God, and it's in heaven.
सो ही वॉज शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, मतलब देखता रहता शून्य मन से, बहुत दुखी था वो लड़का। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर यानी कि शामू के पापा के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। सो व्हेन ही वाज सीइंग द स्काई with a depressed mind and he didn't know what to do, he seen kite, patang urte dekha. So he got an idea, something strike him. Now children are very creative, कुछ तो कुछ आते ही रहते हैं. So like he got an idea. I don't know what's the idea. We'll see in the chapter here. Any guesses? Please write in the comments. So विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, so मुझे एक पतंग मंगा दो. Now seeing the kite, even he thought that with the help of the kite I will bring my kaki down. Now this level of innocence he had. He was this innocent. Okay, and Vishweshwar is his father and Uma is his mother. Now let's read ahead in the topic. I hope you all can see. पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क मतलब नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, ऑफ कोर्स हिज वाइफ इज देयर, ही इज वेरी आल्सो सैड, रहा करते थे. अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए. आपके भी मम्मी पापा कई बार आपको कहते हैं कि मैं आपको ये टॉय ला के दूंगी या दूंगा, परंतु बाद में वो भूल जाते हैं क्योंकि उनके मन काम में ही लगातार रहता है. सेम वे ही वॉज राइट नाउ डिप्रेस्ड, ही वॉज सैड, ऑफ कोर्स ही हैड अ वेरी बैड लॉस. सो ही जस्ट सेड अच्छा मंगा दूंगा कर वे उदास भाव से कहीं और चले गए. सो ही फॉरगॉट अबाउट इट लेटर बिकॉज ही वाज सैड एनीवे. शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था. उत्कंठित यानी कि एक्साइटेड. एनी चाइल्ड विल बी एक्साइटेड बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट एन आइडिया टू गेट हिज मदर बैक. सो ही वाज एक्साइटेड. वो अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका. ओके, सो अपनी इच्छा क्या थी? पतंग को पाने की इच्छा. इफ दे आस्क यू उसकी इच्छा क्या थी, उसको पतंग की इच्छा मतलब ही wanted a kite. एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था. इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली. उनमें से एक छवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया. नाउ बिकॉज हिज फादर विश्वेश्वर was very depressed, he was sad because he had a very miserable loss. So of course he didn't give the money. So now what this child did, because he was very excited, he wanted the money to bring the kite. So कोटी यानी कि हैंगर, जो वो होता है ना, वो it's like pins or something that you hang your clothes in, that's called कोटी. पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था. So your clothes be hanged in the hanger, and from there he was so smart that he took a stool, he dragged the stool and he tatoli यानी कि he was searching in his father's pocket some money. And how much money did he take? That is also important. एक छवन्नी. I don't know if छवन्नी is 25 or 50 पैसे. Google it and give me the answer in the comment section. Okay, का आविष्कार करके उसे तुरंत वहां से भाग गया. Now because his father wasn't giving, he took it. सूकिया दासी का लड़का. This is also very important. सूकिया दासी का लड़का कौन था? सूकिया दासी का लड़का भोला था. शामू का समवयस्क यानी कि सेम एज फ्रेंडशिप, ओके, साथी था. शामू ने उसे छवनी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप के पतंग और दौड़ मंगा दो. देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए. So now he couldn't go and bring a kite. So he told his best friend. Who was his best friend? Bhola was whose daughter? Sukya Dasi का लड़का. These all information is very important. Underline and keep that when you're revising the chapter you will get it very easily. Okay, so he told his friend Bhola that give this. He gave the money to his friend and told that give it to your Gigi and tell her to get a door यानी कि रस्सी. ओके, टू फ्लाई द काइट. दौड़ मंगा देना. देखो खूब अकेले में लाना, बिकॉज ही डिडंट वांट एनीवन टू नो हिज प्लान. पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें दौड़ बांधी जाने लगी. सो दे गॉट द काइट, दे वर टाइंग द रस्सी, दैट इज द थ्रेड, दौड़ फॉर द काइट. ओके, आई एम नॉट रस्सी, इट इज थ्रेड. ओके, बिकॉज विथ रस्सी योर काइट कैन नॉट फ्लाई, सो इट वॉज थ्रेड. सो दौड़ यानी कि थ्रेड. ओके, सो दे स्टार्टेड टाइम. शामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से न कहूँ तो एक बात कहूँ. सो नाउ शामू वॉज अबाउट टू टेल बोला हिज प्लान दैट ही वॉन्टेड द पतंग टू गेट हिज काकी नीचे, बिकॉज ही थॉट दैट काकी इज ऊपर राम किया. ही वॉज सो इनोसेंट दैट ही थॉट दैट विद द हेल्प ऑफ द काइट ही कैन गेट
his kaki down. Okay, so let's read ahead. When we know that this is not possible, this is basically impossible. So भोला ने सिर हिलाकर कहा नहीं किसी से नहीं कहूँगा. So now Shamu was telling him his plan and Bhola was also innocent. He was like okay, I will not tell anybody. शामू ने सिर हिलाकर कहा मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी. मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता. So this is his plan. You should, if they ask you what was Shamu के Uddesh, why he wanted the patang, you should write these two sentences. He wanted the kite to get his kaki down from Ram ke yahan, matlab from heaven he wanted to get his. Don't write heaven, write Ram ke yahan. Use the keywords of the textbook only. Sorry about my mic. Use the keywords of the textbook only, then only you will get marks. Okay, so this was his plan. He wanted to get his mother, yani ki kaki, down with the help of the kite, so that she can hold the kite patang and come down. भोला शामू से अधिक समझदार था. Although they were of the same age, but Bhola was more understanding and had little more knowledge than Shamu. उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है. कठिनता यानी कि डिफिकल्टी. यह दौड़ पतली है यानी कि लाइक दिस थ्रेड इज लिटिल थिन. इफ ओके इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती. इसके टूट जाने का डर है. पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा. सो what advice did Bhola give to Shamu? That this rassi is very thin. If you use a thicker rassi, then only kaki will come. Otherwise the rassi will break and kaki will fall. So although he was more samajhdar, even he was as innocent as Shamu only, because he thought that this plan will be successful, but we know it will not. And of course in this generation children do not have this innocence, क्योंकि उनके पास मोबाइल आया है और मोबाइल में सब लॉजिक है उसमें. So he told that we need a little मोटी डोर. Shamu गंभीर हो गया. अभी Shamu tense हो गया. He was tense because he already knew that he took Chavani from his father's pocket without telling him. Now how he will get the moti rasi? He doesn't have enough money. Okay, मतलब यह की बात लाख रुपए की सुझाई गई है परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए. Now he did not know how to get it because he did not even have money. पास में दाम है. दाम यानी कि पैसा है नहीं. और घर के आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के चला आए हैं. वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे. Now what was his thought process? Now he wanted a moti door because Bhola suggested him that kaki cannot come down. So this Shamu, he said that he was tense, as I told you. He did not know what to do. So for him they took their mother and they took his kaki and उसे बिना दया माया के जला है. So उसकी क्या सोच है कि उसकी माता को Shamu did not know that his mother is actually dead. For him the घर वालों killed her. So his mentality was like, why would they help him to get kaki back when they only sent kaki. ओके पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपये निकाला. सो एज द फर्स्ट टाइम ही रिमूव 56 एंड सेकेंड टाइम ही रिमूव 1 रुपये. अभी 1 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता उस टाइम में. ले जाकर भोला को दिया और बोला देख भोला किसी को मालूम न होने पाए अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे. एक रस्सी ओछी पड़ेगी. ओछी यानी कि छोटी, विल बी स्मॉल. सो गेट 2 बिग रस्सी. जवाहर भैया से. अभी जवाहर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आस्क हु डिड ही आस्क टू टेल भोला टू गेट. सो जवाहर भैया से, अंडरलाइन द वर्ड जवाहर से, एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट काकी. दे वर सो स्मॉल. इमेजिन नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी. सो नाउ ही अगेन द नेक्स्ट डे ही टुक मनी अगेन फ्रॉम हिज फादर्स कोट एंड ही टोल्ड भोला तू 2 रस्सियाँ मंगा दो और टेल जवाहर भैया टू राइट काकी नेम बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट काकी नेम. For them, if they would write kaki ke name, then the kite would go directly to her only. So that was their mentality. They were small. So let's turn the page and move ahead. Just a minute. Yeah.
ओके सो नाउ लेट्स गो अहेड। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मतलब बहुत प्रसन्न मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। सो दे वर वेरी हैप्पी, दे गॉट द रस्सी, दे गॉट द काइट। वेल वी ऑल नो दैट अ काइट कैन नॉट फ्लाई विद अ रस्सी ऑब्वियसली, बट दे वर अगेन आई टोल्ड दे आर इनोसेंट, बट दे वर वेरी हैप्पी दैट बिकॉज their प्लान इज सक्सेसफुल। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न, अकस्मात यानी कि अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। विश्वेश्वर कौन थे? शामू के पापा। और वो कहा पतंग में रस्सी बांध रहे थे? कोठरी में। दिस ऑल्सो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंधेरी कोठरी में। ओके भोला और शामू को धमकाकर बोले तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है। सो लाइक यू नो एज अ लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देयर प्लान ऑल्सो इज गोइंग गुड, बट सडनली द फादर कम्स इन। विश्वेश्वर आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे कोच से रुपया निकाला है। ये वाक्य उसने किससे बोला? उसने शामू से बोला, क्योंकि अभी उसे पता चला कि उसके कोच से 1 रुपये और चवन्नी का चोरी हुआ है। तो उसने भोला से शामू से पूछा। भोला सकपकाकर अभी वो घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि शामू ने बिना बताए रुपया चुराया है। एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब कि भेद खोलने वाला। उसने सब प्लान उगलवा दी, क्योंकि वो बहुत डर गया था। उसे पता था कि ये गलत है, क्योंकि शामू ने बिना बताए उससे जेब से 1 रुपये और चवन्नी निकाला है। बोला शामू भैया ने रस्सी और पतंग मांगने के लिए निकाला था। वो सभी प्लान ही टोल्ड एवरीथिंग दैट व्हाई डिड शामू टेक द मनी फॉर द काइट एंड द रस्सी। विश्वेश्वर यानी कि शामू के पापा ने शामू को 2 तमाचे यानी कि स्लैप्ड हिम 2 टाइम्स जड़कर कहा चोरी सीकर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दिया। सो ऑफ कोर्स ही वाज वेरी एंग्री। व्हाई एनी फादर विल गेट एंग्री इफ दे कम टू नो दैट देयर चाइल्ड इज रॉबिंग फ्रॉम देम ओनली, एंड ऑफ कोर्स they don't want the child to become a robber, so he got very angry. Papa it was very natural for him to get angry, but he did not know what is Shamu's actual plan. भोला ने बस ये बताया कि मुझे शामू ने पतंग और रस्सी खरीदने के लिए लिया वो पैसा, पर उसे नहीं पता था कि क्यों लिया वो पैसा। सो ही वॉज वेरी एंग्री। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा ये किसने मंगाई? ओके सो दिस विश्वेश्वर आस्ट। भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। दिस वॉज देयर मकसद। फाइनली भोला टोल्ड देम देयर मकसद दैट विद द हेल्प ऑफ दिस रस्सी ही विल गेट काकी डाउन फ्रॉम राम के यहाँ। सो दे वर दिस इनोसेंट। नाउ सी व्हाट इज द ट्विस्ट। विश्वेश्वर हद बुद्धि शॉक होकर वही खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। He was this shocked. He took the patang that he had torn and seen that in it there was a chit which was written kaki. He was shocked. He was feeling guilty. Why I hit my child 2 times, but my child wanted to get his mother down. So he did not know this plan. But if he would know, of course, he would have known. But it was very swabhavik. So it was this lesson is written by C.R. Ramcharan Gupta. I will not take more time. I'll just ask you all one question. Do you all think it was advisable for the father to hit the child with hit the child and hit Shamu, or who do you feel was correct, Shamu's side or Vishweshwar ka side? But after come to knowing the truth, Vishweshwar also felt guilty of hitting his son, because of course both of them were depressed and grieved because of the loss of Uma. Okay, so I will end this video here. If you all have any doubts, note it down in the comments. If you all want the question and answers of this chapter, I will. And if you all want any other chapter explanation, I will give all the chapters including poems. Please comment down if you all have any demand for question or answers. Thank you and have a good day.